करता हूँ तब इस छोटी सी बाइबल को लेकर But what a चलता हूँ। what a joy it is to worship with you this morning in this wonderful Assembly of God Church led by Pastor Stephen, and what a joy to meditate God's word. So shall we close our eyes and ask God to speak to us? लेकिन खुशी की बात यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं इस असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया में पास्टर के साथ, और यही आनंदित की बात है, और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Gracious Heavenly Father, I come to you in Jesus' name. Lord, I thank you for this wonderful Sunday morning. Lord, I pray that you will bless this meditation of our word. And even as we go into your word to understand, Lord, this wonderful story, the story that we find towards the end of Acts chapter 4 and Acts chapter 5. A story we sometimes think is a story of God's wrath, but it's actually an encouragement, a story of encouragement. I pray that you speak to each one of us and encourage each one of us in this church this Sunday morning. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Okay, well, let's get started here. Turn your Bibles with me to Acts chapter 4 and also look at Acts chapter 5. प्रेरितों के काम उसके चौथे और पांचवें अध्याय की ओर हम अपने ध्यान को I'm gonna bring a Bible meditation from out of those two chapters. इन दो अध्यायों से हम लोग बाइबल के ऊपर मनन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। On September 11, 2001, 2001 सितंबर 11 के दिन two aeroplanes rammed into a tall building in America. अमेरिका की दो बड़े इमारतों में दो हवाई जहाज घुस गए थे। Those were the terrorists' twin strikes on one of the most powerful business buildings in the whole world. वो आतंकवादियों का वो हमला हमने देखा था जो दो बड़े इमारतों पर हुआ था अमेरिका में। The second one, in fact, was shown live across America because some television cameras are already focusing on the World Trade Center. When the second plane hit it, it was live on some television cameras. और जब दूसरी हवाई जहाज ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मारा था, वहां पर आक्रमण हुआ था, वहां पर बहुत सारी टीवी चैनल्स भी उसको शूट कर रही थी, तो हमने उसको लाइव भी देखा था टीवी पे। Twin strikes. दो हमला वहां पर हुए थे। 2007. 2007 में I was watching the T20 World Cup final with my son. He was at that time he was 4 or 5 years old. 2007 में T20 वर्ल्ड कप देख रहा था मैं अपने बेटे के साथ, जो उस It समय was the first T20 World Cup. वो पहला T20 वर्ल्ड कप था। It was between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। And India batted first and made 157 or 158 runs. और इंडिया ने पहले बैटिंग की और 157 या 158 रन्स मिली थी। Many of the India-Pakistan match, it was a seesaw battle. और अनेक इंडिया पाकिस्तान की खेल की तरह ही वो एक बहुत ही एक ऐसी मैच थी जो बता नहीं सकते थे। And in the 12th over, Irfan Pathan came to bowl. और 12वें ओवर में इरफान पठान गेंदबाजी करने के लिए आए। And in that over, he did a twin strike for India. और उस ओवर में दो स्ट्राइक उसने भारत के लिए। He removed two of the most dangerous Pakistani batsmen, Shahid Afridi and Shoaib Malik, in back-to-back deliveries. और दो गेंदबाज में भारत के लिए उसने दो जीत को हासिल किया, यानी कि पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों को, खतरनाक खिलाड़ियों को उन्होंने उनका विकेट गिराया था, शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक का। And India came back to the match. And in fact, India tightened its grip in the match after those twin strikes by Irfan Pathan. और इरफान पठान के वो दो विकेट के बाद में भारत ने अपने मैच को वापस अपने हाथ में ले लिया। If you're a football fan, you remember Zinedine Zidane's twin headers in the 1998 football final, World Cup football final. Twin headers which took France, which helped France to win over Brazil. 1998 में अगर आप लोग फुटबॉल के लिए अपने जान को देते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि एक कैसे एक खिलाड़ी ने दो स्ट्राइक्स उनके जीत के लिए उन्होंने हासिल की थी। Now, this morning I'm going to bring, as the Holy Spirit has inspired me, a story from God's Word where two twin strikes are involved. और अभी इस समय मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित
परमेश्वर के लिए दो स्ट्राइक्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। Those twin strikes we read about in Acts chapter 5. प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं। And preachers in general, avoid those passages. और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बार प्रचारक इन भागों को अलग कर रख देते हैं, इसको ठुकरा देते हैं। And God's calling upon my life as a traveling evangelist with a little prophetic edge is to go back to those ignored passages in the Bible and preach God's messages from them. और परमेश्वर की कृपा जो मुझ पर है, मैं सफर करते हुए एक प्रचारक हूँ और थोड़ा सा भविष्यवाणी भी करता हूँ। और उस समय में परमेश्वर मुझे यह प्रेरित करता है कि जो भाग ठुकराए हुए हैं उन भागों के बारे में मैं बात करूँ। Not because I'm better than the rest, but because nobody else is doing the job. ये नहीं कि मैं दूसरों से भी अच्छा हूँ, उनसे बढ़कर हूँ, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि इसको कोई करता नहीं है। So turn your Bibles to Acts chapter 5. प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में हम अपने बाइबल And को we read an पढ़ेंगे। unforgettable story और there. यहाँ पर एक ना भूलने वाली एक कहानी को हम पढ़ते हैं। It's a dreadful story, yet it's a delightful story. एक बहुत भयानक कहानी है, फिर भी बहुत ही अच्छी एक कहानी है। And when I went with a clear mind, when I asked the Holy Spirit to speak to me from that passage, I understood that it had great devotional value, Acts chapter 5. और प्रेरितों के 5वें अध्याय के बारे में जब मैं प्रार्थना में परमेश्वर से मांग रहा था कि परमेश्वर मैं क्या बात करूं, मैंने इस बात को समझा कि बहुत ही एक ध्यान करने वाली और एक मनन करने वाली बात यहाँ पर है। Now, I have split the story of Ananias in that chapter into 7 or 8 or 9 parts. In fact, I don't know how many parts, but you come along with me and we'll learn together. अनन्यास की उस कहानी को मैंने 7 या 8 या 9 भाग में मैंने उसको भागित किया है। Now, the first of all, we read about the disciple Ananias there. सबसे पहले हम उस चेले को या उस शिष्य को देखते हैं जो अनन्यास है। The Bible says in Acts chapter 5 verse 1, 5वें अध्याय उसके पहले वचन में हम इस बात को but पढ़ते a हैं। man named Ananias, that's what the Bible says. अनन्यास नामक एक मनुष्य करके परमेश्वर का वचन कहता है। This man was a believer, there's no doubt about it. इसका कोई शक नहीं था कि ये एक व्यक्ति एक मसीही In था। fact, if you go back to Acts chapter 4, प्रेरितों के काम उसके 4वें अध्याय में अगर हम लोग जाएंगे, and if you look at verse 32, उसके 32 वचन को अगर हम लोग देखेंगे, it's talking about how the disciples, how the believers started giving to the church. और विश्वासियों ने क्या दिया और कैसे दिया इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Acts 4:32 says, now the full member of those who believed, underline the word believe there, यहाँ पर कहता है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त, विश्वास करने वाली were of मंडली, one heart and soul. वो एक चित्त और एक मन के थे। No one said that any of the things belonged to him was his own, but they had everything in common. और यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। Which means it's talking about the time where the disciples, the believers, started giving what they had for the benefit of the church. तो ये उस समय की बात है जब मसीही लोग या विश्वासी उनके पास जो कुछ भी था वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते थे प्रभु की महिमा के लिए। And one among them, one such believer was Barnabas. और उनमें से एक प्रेरित एक विश्वासी था बरनबास। We read about him in Acts 4:36. और उसके 36 वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। Barnabas' name was Joseph. बरनबास का नाम था यूसुफ। And Barnabas means son of encouragement. और उसका मतलब यह है कि शांति का पुत्र। And he was an encourager because he gave what he had. He had a piece of land, he sold it, and he gave the entire amount to the church. वो सबको उत्साहित करता था, उसके पास जो भी था वो सब उसने कलीसिया को दिया था। And then in continuation the Bible talks about Ananias and Sapphira. और उसके बाद में अनन्यास और सफीरा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते So हैं। he was a believer just like Barnabas. तो ये अनन्यास भी बरनबास की तरह एक विश्वासी था। If Barnabas was a believer, Ananias and Sapphira were believers. अगर बरनबास एक विश्वासी था, एक मसीही था, तो अनन्यास और सफीरा भी विश्वासी थे। And in the early church, every believer was a disciple of Jesus. और उस समय उस कलीसिया में अगर कोई एक विश्वासी है तो वो परमेश्वर का एक शिष्य भी था। Who is a disciple of Jesus? यीशु का शिष्य कौन है? A disciple of Jesus follows after Jesus for the rest of his life. एक शिष्य या फिर एक चेला जो है
अपने जीवन भर परमेश्वर यीशु की पीछा करता है। He is not the one who raises his hand in a meeting and thinks of Jesus for 10 seconds and then lives for sin for the rest of his life. और वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कलीसिया के मीटिंग के बीच में अपने हाथ को उठाता है, 10 सेकंड के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता है और फिर अपनी सारी जिंदगी पाप में बिताता है। He follows after Jesus. He chases after Jesus for the rest of his life. वो अपने जीवन भर परमेश्वर की खोज में प्रभु के पीछे हो लेता है। In fact, the Bible says in Acts chapter 11 verse 26, प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय उसके 26 वचन में ऐसा कहता है, in the city of Antioch, अंतियोक के उस शहर में the disciples were first called as Christians. सारे जो चेले थे, जो शिष्य थे, उनको सबसे पहले विश्वासी कहे थे। So, the word Christian was actually a nickname, not a complimentary nickname, a derogatory nickname that the people of those times called the followers of Christ because everything these fellows did were like Jesus. तो उस समय में विश्वासी या फिर मसीही एक ऐसा नाम था जो परमेश्वर के पीछे जो करते थे और जो कुछ परमेश्वर यीशु करते थे उसी तरह जितने उसके शिष्य लोग करते थे उनको दिया गया था। And in Acts chapter 26, 27 and 28, प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय उसके 26-27 में हम ये पढ़ते हैं। Agrippa tells Paul, in such a short time, do you want to make me a Christian? और एक अग्रिप्पा पौलुस से कहता है कि इतने छोटे समय में क्या तुम मुझे एक मसीही बनाना चाहते हो? Agrippa exactly knew what it meant to be a Christian. क्योंकि अग्रिप्पा को अच्छे से पता था कि एक मसीही होना या फिर एक विश्वासी होने का मतलब क्या Bible है। scholars say that he had an adulterous relationship with a woman. और बहुत लोग बाइबल के पंडित लोगों ने कहा है कि एक व्यभिचार की रिश्ता था एक स्त्री के साथ And उसका। Paul was speaking to him, giving his testimony. और अपना गवाही को लेकर पौलुस उसके सामने खड़ा था। So Paul was asking him a personal question. Agrippa, do you believe the prophets? और एक व्यक्तिगत रूप से उससे एक प्रश्न पूछा था पौलुस ने कि अग्रिप्पा क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो? Agrippa's response was, in a short time, do you think you can make me a Christian? और अग्रिप्पा का यही जवाब था कि क्या इस छोटे समय में तुम्हें यह लगता है कि तुम मुझे एक विश्वासी या फिर एक So मसीही बना सकते हो? who is a Christian? Who is a believer? Who is a disciple? तो ये शिष्य कौन है या फिर यह मसीही कौन है या फिर यह विश्वासी कौन है? He believes in Jesus and that transforms his lives. And in Agrippa's case, he's going to say bye-bye to that adulterous relationship. And he was not ready for it. That's why he says, in such a short time, do you think you can make me a Christian? और वो यह दिखाता है कि मसीह यीशु पर विश्वास करना और उसके बाद अपने जीवन को रूपांतर किया जाना। इसलिए अग्रिप्पा इस बात को जानता था और इसलिए उसने पौलुस से पूछा, क्या तुझे लगता है कि इस छोटे से समय में तुम मुझे एक विश्वासी बना पाओगे? If I asked you a question, how many of you believe in Jesus? अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, Everybody might raise their hands. सब लोग अपने हाथ उठाएंगे। But that belief should not stay stuck in our head, but should come into our heart. वो सिर्फ हमारे वो विश्वास जो हम कहते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग से नहीं लेकिन हमारे दिल के अंदर से निकलना And चाहिए that should transform our lives. और वो हमारे जीवन को रूपांतर करना You चाहिए। heard the story of a man who was a stuntsman who rolled a wheelbarrow across the Niagara Falls. और आप लोग जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो स्टंट्स करता था नायग्रा फॉल्स के ऊपर से उसने एक चक्के की एक चीज होती है उसको लेकर वो नायग्रा फॉल्स के ऊपर से गया। Okay, a rope over the Niagara Falls and he could roll a wheelbarrow across it. और उस एक रस्सी बांधी हुई थी नायग्रा फॉल्स के ऊपर से और वो व्हीलबैरो के साथ उसके ऊपर And से people चढ़ा। from the United States side, people from the Canadian side, they all came to watch him. और अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग वो सब उसको देखने के लिए वहां पर आए। And at one time he asked one of the spectators, "Do you think I can roll this wheelbarrow across and come back safely?" और उस बीच में उसने एक इंसान से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस व्हीलबैरो को He लेकर said, मैं "Sure, sir, sure." उस पार जाकर इस पार सुरक्षित आ सकता हूँ? उसने कहा हाँ। Absolutely. उसने कहा इसका कोई शक नहीं है। And he said, "Would you be the first one to sit in my wheelbarrow?" तो फिर उसने कहा कि क्या तुम वो पहले इंसान बनोगे मेरे व्हीलबैरो के अंदर So बैठने के that लिए I can roll you across and bring you back. ताकि मैं आपको ले जा सकूं उस पार और फिर सुरक्षित लेकर आ That सकूं। man turned back and just dissolved himself in the crowd. और वो व्यक्ति जिसने कहा था कि हाँ आप कर सकते हो उसने अपना वो मुड़ गया और फिर वापस उसकी ओर नहीं आया। He thought he believed that this man could roll a wheelbarrow across and back. और उसने सोचा कि वो विश्वास करता था
कि ये इंसान उस व्हील बैरो को उस पार तक लेकर जाकर वापस आ सकता But है, that belief was not strong enough for him to get into that wheelbarrow. लेकिन उसकी विश्वास इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उसके अंदर बैठ सके। Ananias was a believer, which means, this inspires us to ask ourselves a question. Are we such a kind of believer that belief transforms our life? और अनन्यास भी एक विश्वासी था या फिर एक मसीही था, लेकिन ये हमें भी एक संकोच में डालता है कि हमें भी अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसे एक विश्वासी हैं कि हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। Let's move on. The disciple Ananias, secondly, doting wife Ananias, which means he was very kind to his wife. He was doting his wife. Ananias was very kind to his wife. और उसके बाद में उसकी पत्नी के बारे में हम जब पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पत्नी के लिए बहुत ही सहायक था, अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। Verse 5 and chapter 5 verse 2 back says, with his wife's knowledge he sold a piece of property. और उसने 2 वचन में हम यह पढ़ते हैं कि उसने कुछ भूमि बेची अपने पत्नी के जानते हुए ही। Those times and this times men will be men, as one of the ads says, they do many things without the wife's knowledge. और उस समय और इस समय जो पुरुष होते हैं वो पुरुष ही रहेंगे, क्योंकि कई बार वो लोग कई सारी चीजें करते हैं उनकी पत्नी या फिर स्त्री के जाने बिना। Here was a man who believed in talking to his wife. और यहाँ पर हम एक ऐसे इंसान की ओर देखते हैं जिसने विश्वास किया कि उसको उसके पत्नी से बात करना बहुत जरूरी है। Here was a man who was consulting with his wife, keeping his wife in the loop when he made the decisions. और जब भी वो कोई निर्णय लेता था उसने हमेशा अपनी पत्नी की भी बात ली, उसने अपनी पत्नी से भी सुझाव ली और जो कुछ वो करता था अपनी पत्नी से बांटता था। I'm sure he sat with his wife one day and said, "Honey, God is moving my heart to do this thing," and then we will talk about what they did. But I'm just making a point here that he is talking to his wife. और ऐसा भी हुआ होगा, उसने अपने पत्नी को अपने पास बुलाकर बिठाकर कहा होगा कि ऐसा परमेश्वर मुझे यह काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और ये हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम आगे देखेंगे। Too many of us men don't talk to our wives. बहुत सारी बार पुरुष अपनी स्त्री से या फिर अपने पत्नियों से बात नहीं करते हैं। But meaningful conversation is one thing every woman looks forward to in a marriage relationship. लेकिन एक शादीशुदा एक रिश्ते में हर एक पत्नी यही चाहती है कि उसके पति जो हैं उनसे बात करें। Every woman dreams that dreams that if a husband would be like Elkanah, who said to Hannah, who was without children, "Hannah, don't you think I am to you like 10 sons?" और सारी पत्नियां यही चाहेगी कि उनके पति एल्काना की तरह हो, जिसने हन्ना से कहा था कि हन्ना तुझे नहीं लगता कि 10 पुत्रों से बढ़कर मैं तुम्हारे लिए हूँ। That this is one area I'm working at. ये एक भाग है जहाँ पर मैं जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। Otherwise, my wife is not going to let me continue this message. नहीं तो मेरी पत्नी मुझे यह समाचार को आगे ले जाने नहीं देगी। I'm working to be a better preacher, working to be a better husband, working to be a better daddy, but this particular area, working to be a better husband, I'm really working, and we men need to work at this area. और एक अच्छे प्रचारक बनने के लिए, एक अच्छे पिता बनने के लिए और एक अच्छे पति बनने की कोशिश में मैं हूँ और मैं यह समझता हूँ कि एक अच्छे पति बनना बहुत जरूरी है। God has wired us differently. We men like action, but our wives like conversation. और कई बार पतियों को यह अच्छा लगता है कि वो कुछ एक्शन में देंगे, लेकिन पत्नियों को यह अच्छा लगता है कि वो अपने पति के साथ बातचीत करें। And because we are wired differently, and because the Bible says we must be unselfish, we must engage with our spouse in meaningful conversation. और हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए और बाइबल के हिसाब से हम लोगों को अपने बारे में ना सोचते हुए अपने पत्नी के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। Okay, so disciple Ananias, doting wife Ananias, and thirdly, donating Ananias. और तीसरी बात हम अनन्यास के बारे में देखते हैं कि वो दान देता था। So along with his wife, they sold a piece of property. उन्होंने उसकी पत्नी के साथ एक भूमि बेची। And from chapter 4, 32 to 36 of Acts,
You know, there were many believers in the early church who did the same. Whatever they had, they sold it and gave it to the church. प्रेरितों की चौथे अध्याय उसके 32 वचन से जब हम पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे विश्वासी थे जिन्होंने अपने जगह को बेचकर कलीसिया को उसके पैसे दिए थे। And Barnabas gave up, you look at chapter 4 verse 36, Barnabas sold a field, verse 37, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. और उसके चौथे अध्याय 36-37 में हम यही पढ़ते हैं कि बरनबास ने भी उसकी कुछ भूमि जो थी उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। Now, what I have doesn't belong to me, but belongs to God. Your pastor put it very eloquently just a few minutes ago. कुछ ही देर पहले पास्टर ने हमसे ये सही कहा कि जो भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है लेकिन वो परमेश्वर का है। So if God has given it to me, तो अगर परमेश्वर ने वो मुझे दिया है, and if this would serve God's kingdom more than it serves me, और मेरी जरूरतों से ज्यादा अगर परमेश्वर के राज के लिए काम आए, I know I must be willing to donate it. तो परमेश्वर को मुझे राजी होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को उसे दे दूं। Mary gave her womb to Jesus. मरियम ने अपनी कोख दे दी थी परमेश्वर के लिए। Joseph of Arimathea gave his tomb to Jesus. अरिमथिया के जो यूसुफ था उसने अपना कब्र जो है यीशु के लिए दे दिया। I know a lot of Christians who don't even give a comb to Jesus. मैं बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूँ जो एक थोड़ा सा कुछ भी नहीं देते हैं। They are like leeches. What can the pastor give me? What can the church give me? हम एक ऐसे जंतु की तरह होते हैं जो खून को चूसते हैं। पास्टर मुझे क्या दे सकता है या फिर कलीसिया मुझे क्या दे सकता है? Your pastor didn't ask me to preach this message, okay? आपके पास्टर ने मुझे ये प्रचार करने के लिए नहीं कहा है। On the day of judgment, you'll find out that what I'm saying is truth. और न्याय के उस दिन आपको पता चलेगा कि जो भी मैं You कह रहा come हूँ to वो church, सच है। no AC in this church. आप चर्च में आएंगे कहेंगे कि यहाँ पर एसी नहीं है। Forget about AC. You ask yourself the question what John F. Kennedy asked the Americans. Ask not what the country can do for you. Ask what you can do for the country. ये मत पूछो कि चर्च में एसी है या नहीं, लेकिन ये पूछे अपने आप से कि परमेश्वर के लिए या फिर कलीसिया के लिए आप क्या कर सकते हैं। Jesus said wow once. He said wow. यीशु मसीह ने एक बार बहुत ही अच्छा वाव करके कहा था। When he said wow? उसे कब ये कहा था When he आपको saw पता है? a poor widow. उसने देखा कि एक बहुत ही दरिद्र एक स्त्री थी। She gave both her copper coins, all that she had, and put it in the offering bag. वो विधवा के पास सिर्फ 2 सिक्के थे, उसने दोनों उस दान की पेटी में डाल दिए थे। You know why? क्यों आपको पता Because है? there was nothing left inside her pocket. That's why Jesus said wow. क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था बचा हुआ, इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा वाव। She gave 100%. In other words, और उसके पास जो भी था उसका 100% she had graduated from tithe to total. और उसने दसवांश से सब कुछ की और ग्रेजुएट किया था, उसने दे दिया था। But there were many rich men who also put a lot more than 2 copper coins. और ऐसे बहुत सारे धनी पुरुष थे जिन्होंने 2 सिक्कों से ज्यादा परमेश्वर को दे दिया था। Jesus exactly didn't say wow, and sometimes he was close to saying whoa, because many of them were secretly in love with their money. और परमेश्वर ने यीशु ने उनकी ओर देखकर वाव नहीं कहा, लेकिन कई बार परमेश्वर ने उनके ऊपर हाय कहा क्योंकि वो गुप्त में ही अपने पैसों के मोहित थे। No, I'm an evangelist. I live by love offerings. People send me from people who hear my messages, read my writings. But you know what? God is challenging me to give. And once God challenged me, how long will you give 4-figure offerings? Come on, give a 5-figure offering. And my wife and I decided to give a 5-figure offering to a man of God who blessed us. और मैं एक ऐसा सेवक हूँ जो मेरे आर्टिकल्स को पढ़कर या फिर मेरे सेवकाई को देखकर भेंट बेचते हैं और पैसे बेचते हैं। और एक बार परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि कितने समय तक आप 4 गिनती का एक ऑफरिंग मुझे दे दोगे, और उस समय एक 5 गिनती का ऑफरिंग देने के लिए कहा। उस समय मेरे पत्नी के साथ हमने परमेश्वर के दास को 5 गिनती का ऑफरिंग दे दिया। The local Assembly of God Church I go as a member to in Hyderabad. They are coming up with a building project. And it's a huge project, and the believers are giving. And then I asked myself, what is my role in that? I get to preach there sometimes. I decided last time when I preached, the sale of my books, we would give that to the church, maybe a small amount. We need to be creative when it comes to giving, and we need to be sacrificial and put all the adjectives. As the Holy Spirit lives you, graduate, grow from tithe to 20%, 30%, how much ever you can. As the Spirit of God moves you, keep growing in
giving. और जिस कलिसिया में हैदराबाद में मैं अटेंड करता हूँ, जहाँ का एक मेंबर हूँ, उस कलिसिया में एक भेंट ली जा रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं क्या दूँ, मेरी उसमें भाग क्या होगी। तो मैंने ये कहा कि जितने भी किताबों को बेचकर मेरे पैसे आते हैं, भले ही वो एक छोटी रकम हो, वो परमेश्वर को मैं दे दूंगा। और यह हमारे जीवन में एक सीख होना चाहिए कि हमें अलग अलग तरीके ढूंढने हैं किस तरह हमारी दशवांशों को और हमारी भेंट जो प्रभु को हम चढ़ाते हैं वो किस तरह 10 से 20 से या फिर 30 या 40% हम बढ़ाते रहें परमेश्वर के नाम के लिए। Disciple Ananias, doting wife Ananias, donating Ananias, and fourthly, deceiving Ananias. चौथी बात हम अनन्यास के बारे में देखते हैं, वो एक धोखेबाज था। Now, we read that in verses 3 and 4, verses 2, 3 and 4 of Acts chapter 5. 2, 3 और 5वें चौथे पद में 5वें अध्याय के हम What पढ़ते हैं is इसको। going on in Ananias' mind? अनन्यास के दिमाग में क्या चल रहा था? With a little donation, I want the entire admiration of the church. और थोड़ा सा भेंट मैं दे दूंगा, लेकिन पूरी कलीसिया की ध्यान उस पर होना चाहिए। Now, he had a little bit of greed, but more than greed, he wanted he had pride, I would say, or he wanted to be the center of all attention. लोभ तो उसके अंदर था ही, लेकिन उस लोभ के भी ज्यादा मैं यह कहूंगा कि उसके अंदर वो घमंड थी और वो चाहता था कि सबका ध्यान उस पर लगा रहे। I have 2 houses. मेरे 2 घर हैं And one house I sell it for, say, 20 lakhs. और एक घर सोच लो कि मैंने 20 लाख के लिए बेच दिया। But I'm going to give only 15 lakhs to Pastor Peter. लेकिन सिर्फ 15 लाख मैं पास्टर पीटर को दे But when दूंगा। I give it, लेकिन जब मैं उसको दे दूं, I'm going to say, Pastor, I sold my house and I sold it for 15 lakhs. In fact, that's a lie, but I sold it for 15 lakhs, and here is the entire amount. You know, the entire amount will have special sound effects. Entire amount, and I'm going to give it to the church. और वो पास्टर पीटर के सामने आकर कहेंगे कि पास्टर मैंने अपने घर बेचा है, 15 लाख में बेचा है और उस 15 लाख उसका सारा जो कीमत है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और यह भले ही एक झूठ है, लेकिन वो 15 लाख का सारा रकम जब वो कहते हैं उसमें स्पेशल साउंड इफेक्ट्स होंगे, ये हमने यहाँ पर समझाया। And the believers will say, wow, what a generous man. और सारे विश्वासी कहेंगे कि वाह कितना दानी, एक ऐसा व्यक्ति जो दान करता है। And after the service, he gets delayed. He can't go to his house immediately because so many handshakes. He's dreaming about all that. Wonderful brother, wonderful brother. और उसके बाद में कलीसिया के बाद में वो जल्दी घर भी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सब लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, हाथ मिलाने के लिए। With all these dreams, he's coming to meet Pastor Peter. और इन सारे सपनों को सजाते हुए वो पास्टर पीटर से मिलने आता है। The Bible says, वचन कहता है, the Bible, this is what the Bible says in verses 3 and 4. 3 और 4 पद में हम यही पढ़ते हैं। Acts chapter 5 verses 3 and 4. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय But 3 Peter और said, 4। Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? और पतरस ने उससे कहा कि हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? Satan has filled your heart. यहाँ पर कहता है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? He was a believer, but yet Satan could fill his heart. वो एक विश्वासी था, लेकिन फिर भी शैतान उसके मन में बस पाया। How can that happen? ये कैसे हो सकता है? Satan is not a rapist. शैतान एक बलात्कारी नहीं है। If you give him permission, he will enter in. जब तक आप उसे अनुमति नहीं देते हैं, तब तक वो अंदर नहीं घुस सकते। Ananias gave permission for Satan to come into his life. और अनन्यास ने शैतान को वो अनुमति दी थी उसके जीवन में आने के लिए। Just like Peter gave permission for Satan to get into his life, and Jesus saw Satan in Peter, and Jesus looked at Peter and said, "Get thee behind me, Satan." और उसी तरह जिस तरह पतरस ने शैतान को अनुमति दी थी अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए, और यीशु मसीह ने पतरस के अंदर उस शैतान को देखकर कहा था, शैतान हट जा मेरे सामने से। And when Satan came inside Ananias, और जब अनन्यास के अंदर शैतान he started अंदर आया, behaving like Satan. वो शैतान की तरह काम करने लगा। You know what is Satan's native language? और यह शैतान की भाषा क्या है आपको पता है? You might speak, your native language may be Konkani. आपकी भाषा हो सकती है कोंकणी। My native language is Tamil. इनकी भाषा है तमिल। My wife is a little complicated, half Telugu, half Rajasthani, half Tamil. और Doesn't add up to the maths, doesn't add up, but still. मेरी बीवी जो है वो हाफ तेलुगु, हाफ तमिल, हाफ राजस्थानी है। And I don't know what your native language is. और मैं नहीं जानता कि आपकी भाषा क्या है। But Jesus
in John 8:44 talked about the native language of the devil. और यूहन्ना की 8 अध्याय इसके 44 वचन में शैतान की भाषा के बारे में It कहता is है, telling lies. वो सिर्फ झूठ बोलना है। And when Ananias tried to deceive Pastor Peter, he was imitating Satan. He was lying. He was using the native language of Satan. और जब अनन्यास पास्टर पीटर के सामने, पतरस के सामने आता है, तो वो शैतान की भाषा में, शैतान का अनुकरण करके उसकी भाषा में झूठ बोलता है। Church of God, let's not imitate Satan. हमें शैतान का अनुकरण नहीं करना है। Let's not invite Satan and imitate him in our life. उसकी सदृश बनने के लिए या फिर उसको हमारे जीवन में हम नहीं If बुलाएंगे। we imitate him, अगर हमने उसकी अनुकरण if की, we go behind him, अगर हम उसके पीछे हो लेंगे his तो destiny can become our destiny. उसकी जो हालत होने वाली है वो हमारी भी हालत हो सकती है। Revelation 20 and verse 10, the Bible talks about the devil, the false prophet, the beast, the antichrist. Their destiny is the ever burning fire of hell. And if we follow after Satan, the greatest reward the devil can give you for being his follower is eternal hell. और प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसके 10वें पद में हम यह देखते हैं कि शैतान और उसके जितने भी सेवक है, उसकी सारी जो दूत हैं, उनके लिए रखा हुआ वो जो नरक, जो गंधक और आग से भरी हुई है, वही हमारा भी अंत की हालत हो सकती है। Deceiving Ananias. और ये कैसे अनन्यास को हम यहाँ पर देख सकते हैं जो धोखा देता है। Fifthly, deity of the Holy Spirit demonstrating Peter. और पांचवी बार हम यह देखते हैं कि पवित्र आत्मा का एक रूप जो पतरस में हम देख सकते हैं। The deity, Peter, from Peter's words we can understand the Holy Spirit is God. The deity of the Holy Spirit. पतरस के वचनों के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा ही खुदा है। Our Prime Minister was in America recently, last week, and he spoke to 20,000 Indians in New York or Madison Square or wherever, and he said, "Let force be with you." That's what he told them. और हमारे प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते में अमेरिका गए थे और उन्होंने कई सारे भारतीयों से वहां पर बातचीत की और उनसे कहा कि तुम्हारे साथ शक्ति रहे। And many people, including believers, they think Holy Spirit is a force. और बहुत सारे लोग वहाँ पर विश्वासी भी थे और विश्वासी लोग भी कई बार सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का मतलब है प्रभाव या शक्ति। Holy Spirit can be forceful, but he is not a force. पवित्र आत्मा प्रभावशाली हो सकता है लेकिन वो प्रभाव या शक्ति नहीं है। Many believers think Holy Spirit is a power. कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक तरह की ताकत है। Holy Spirit is not a power. Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक ताकत नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। And not just an ordinary person. और सिर्फ एक साधारण व्यक्ति He नहीं, is God. वो प्रभु खुदा ही है। Look at your Bibles. Look at Acts chapter 5. प्रेरितों के काम उसके 5वें Look अध्याय at verse 3. उसके 3रे वचन। You know, Peter says you're lied to the Holy Spirit. Verse 3. 3रे वचन में ये कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला And है। verse 4, you're lied not to men but to God. और 4थे वचन में कहा है कि तूने मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला So है। what is Peter saying? तो यहाँ पर पतरस क्या दर्शाता You're है? lied to God the Holy Spirit. तो आप पतरस के कहने से हमें यह पता चलता है कि तूने झूठ बोला है पवित्र आत्मा से जो खुदा है। So the Holy Spirit is God eternal. और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है जो अनंत काल के लिए है। God the Father, पिता परमेश्वर, God the Son, पुत्र जो परमेश्वर God the है Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर One है। God who exists in three persons. एक ऐसा परमेश्वर जो एक ही परमेश्वर है जो 3 व्यक्तियों में है। This is the doctrine of the Trinity. और यही त्रित्व के बारे में हम जानते हैं। On this we stand, even though we don't understand. और इसी त्रिएक परमेश्वर के ऊपर हम खड़े रहते हैं। Don't make a mistake here. यहाँ पर एक गलती ना करें। Now, if that's where if you don't believe Jesus is God, then you are close to becoming a Jehovah's Witness. और अगर आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर यीशु ही खुदा है, तो इसके बहुत करीब है कि आप यहोवा के साक्षी हो सकते हैं। Once you are weak in the doctrine of Trinity, you open the doors for all kinds of cults. अगर त्रिएक परमेश्वर के बारे में आपका जो समझना, आपका जो भाव जो है वो अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर वो प्रभावशाली नहीं है, तो फिर आप अनेक दरवाजे खोल लेते हैं आपको बात करने के So लिए। God the Holy Spirit is a person and he is also God.
और पवित्र आत्मा जो खुदा है वो एक व्यक्ति भी है और परमेश्वर भी है। And then we move on in the story, dead or destroyed by the Lord Ananias. एक ऐसा अनन्यास जो मरा हुआ है या परमेश्वर से पूरी तरह से नष्ट किया गया है। Verse 5, you read Ananias after he listened to Pastor Peter, who said, "You're light to God," he fell down dead. और 5वें पद में हम यह पढ़ते हैं कि पास्टर पीटर ने जो भी उससे कहा था वो सब सुनकर अनन्यास गिर पड़ा और उसने प्राण छोड़ Now, दिया। some Bible scholars and many believers, like to think our God in the Old Testament is a holy God. In the New Testament, He is loving God. और बहुत सारे लोग विश्वासी यही समझना उनको अच्छा लगता है कि पुराने नियम में परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और नए नियम में यीशु मसीह जो है बहुत प्यारा परमेश्वर है। No, nothing can be further from the truth. That is a lie. और यह एक झूठ है और सच से इसको कोई हटा नहीं सकता है। Throughout time and before time and forever and forever, God is always holy. God is always loving. Both of these characters of God have coexisted for all eternity. समय से पहले और समय के बाद भी जब तक यह दुनिया है या फिर अनंत काल के लिए परमेश्वर हमेशा पवित्र भी था और परमेश्वर हमेशा प्यारा भी है और ये दोनों उसी व्यक्तित्व में हम हमेशा देखते When हैं। Adam plucked the apple, because God was love, God didn't strike him down dead. जब आदम ने उस फल को उस पेड़ से तोड़ा था क्योंकि परमेश्वर प्यारा था इसलिए उसने उसको वहां पर मार नहीं डाला। He gave him an opportunity उसने उसे एक अवसर दिया to come back. वापस आने के लिए। An opportunity that lasted for more than 900 years. एक ऐसा अवसर जो 900 साल से ज्यादा बढ़कर गया। That's how long Adam lived, to come back. और वही इतना साल आदम जिया था ताकि वो वापस लौट आए। In Genesis 15:16, we read this wonderful statement. In Genesis 15:16, उत्पत्ति के उसके 15 अध्याय उसके 16वें पद में हम इस सुंदर बात को पढ़ते हैं। God, the iniquity of the Amorites had not yet risen to the heights. Yet the iniquity of the Amorites had not yet risen. और अमोरियों का जो अधर्म उस समय पूरा नहीं हुआ था। Who are the Amorites? ये अमोरिय कौन थे? They were one of the ites whom God commanded Joshua to destroy. यहोशू को आदेश दिए गए एक ऐसे लोग थे जिनको नाश करना था। But before Joshua destroyed one of the Amorites, यहोशू के उनके नाश करने से पहले God was loving to give the Amorites opportunities to repent. और अमोरियों को भी एक ऐसा अवसर परमेश्वर ने दिया, वो इतना प्यारा था कि वो भी पश्चाताप कर सके। But when they were stubborn in their sin, लेकिन जब वो उनके पापों में जिद्दी थे, God released His judgment. परमेश्वर ने अपने न्याय को वहां पर भेजा। There, in that context, Joshua was supposed to kill them with his army. और उसी समय यहोशू अपने प्रजा के साथ उनको मार डालने वाला था। In the same way, Ananias. और उसी तरह हम अनन्यास को देखते We हैं। just read about him in one chapter in the Bible. एक ही अध्याय में हम उसके बारे में We पढ़ते don't हैं। know his full story. उसकी पूरी कहानी को हम नहीं But जानते God हैं, knew his full story. लेकिन परमेश्वर के सामने उसकी पूरी कहानी थी। I believe God gave Ananias so many opportunities. मैं ये विश्वास करता हूँ कि अनन्यास को परमेश्वर ने ढेर सारे अवसर दिए होंगे, But because he did not use that opportunity to repent and come back to God, लेकिन इसलिए कि उसने उन सारे अवसरों को परमेश्वर के पास वापस लौट आने के लिए नहीं इस्तेमाल and किया he was bold and blatant in his sin, और वो अपने पाप में घुस चुका था और उसके पाप में वो पड़ा था। God allowed him to die. परमेश्वर ने ये होने दिया कि वो मर जाए। What is that death? वो मर जाना या फिर Death is मृत्यु क्या nothing but है? the closure of the last opportunity that you had to come to Jesus. और मृत्यु का यह मतलब है कि जो अवसर, आखिरी अवसर जो परमेश्वर ने आपके लिए खुला रखा था, उसका बंद होना। Because my Bible says in Hebrews 9:27, इब्रानियों के 9 अध्याय उसके 27 वचन में, man is destined to die once and after that to face judgment. और हम यहाँ पे यही पढ़ते हैं कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। So after a person dies, there's only judgment to look after too. No gospel preaching, no altar call, no opportunities to come to God. और अगर एक व्यक्ति एक बार मर जाता है या फिर उसके लिए मृत्यु है, तो फिर उसको आगे अगर कुछ देखना है वो है न्याय, क्योंकि उसके बाद उसको ना एक और अवसर मिलेगा ना किसी और की बुलाहट मिलेगी। That's why it's a waste of time to pray for the dead. इसलिए एक समय को गवाना एक ऐसा चीज हम देखते हैं, मरे हुओं के लिए प्रार्थना करना। That's why the theologian in me revolts when somebody even says rest in peace. That's not in your hands whether they rest in peace or not rest in peace. और इसलिए मैं कई बार जब लोग कहते हैं कि
उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं इसके लिए भी ये कहता हूँ कि ये हमारी कोई काम नहीं है कि उसकी आत्मा शांति से रहे या That's फिर चंचल रहे। entirely in God's hands. ये सब परमेश्वर के हाथ में है। You know, all the opportunities that we have is on this side of eternity, none after we die on the other side of eternity. जितने अवसर हमारे पास है वो अनंत काल के जीवन के इस पार है, उस पार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। So we don't know all the details about Ananias, but I believe that was the last opportunity that God gave him in his calendar, and he blew it away. He wasted it. He became a deceiver. He thought he can get away with it, but he could not get away, and he was destroyed by the Lord. और अनन्यास की पूरी इतिहास भले हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि परमेश्वर ने उसको एक अवसर दिया था, लेकिन उस अवसर को उसने गंवाया था, उसने धोखा दिया था, और वहां पर उसका अंतफल उसको मृत्यु मिली। And in this passage we also read about the dread causing God. The Bible says in verse 5 of Acts 5, there was a great fear that gripped the church at that time. पांचवें पद में हम यह पढ़ते हैं कि एक बड़ा भय छा गया सारे कलीसिया के ऊपर। You know, people have a negative impression about fear. भय के बारे में या फिर डर के बारे में एक गलत बात लोगों के दिमाग में Fear है। is actually good. भय एक अच्छी बात होती You है। know, why don't I, when I am in the kitchen and my wife is making tea for me, why don't I put my hand on the teapot? अगर मेरी पत्नी मेरे लिए चाय बना रही है और मैं उस किचन में उसके साथ हूँ, क्यों मैं अपने हाथ को उस गरम चाय के बर्तन पर नहीं लगाऊंगा? Yeah, the reason is I'm fearful that I will get burnt by the teapot. क्योंकि ये डर मेरे अंदर रहता है कि अगर मैं उसको पकड़ूं तो मेरा हाथ जल जाएगा। It's really good. ये बहुत अच्छा है। You know, yesterday Mahendra Singh Dhoni was talking about how Suresh Raina batted in the Champions Trophy final. You know, he said he was cautious. He was not taking risks, too many risks. He was cautious and he did clean hitting. Why? If he plays carefree, if he plays without a care, then he could get out. और कल की मैच के बाद में धोनी सुरेश रैना के बारे में कह रहे थे कि किस तरह उसने बहुत ही अच्छी बहुत चेतावनी के साथ उसने खेला, क्योंकि अगर वो ऐसे चेतावनी के साथ या डर के साथ नहीं खेलता तो हो सकता है कि वो आउट हो सकता था। Am I sure that I will go to heaven? क्या इस बात का पक्का हूँ कि मैं स्वर्ग चले जाऊंगा? Yes, of course. और मैं ये कहूंगा कि हाँ बिल्कुल। I know him in whom I believe, like Paul I can say. पौलुस के साथ मैं भी कह सकता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, And I'm उसको जानता हूँ, persuaded that विश्वास he's करता able हूँ। to keep that which I committed to him against that day. और उस दिन अगर मैंने उससे एक वाचा की है तो उसको निभाने के लिए वो हो सकता है कि मैं विश्वास करता But हूँ। at the same time, लेकिन उसी समय I will also say with Paul, like he said in 1 Corinthians 9:27, पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27 वचन में जिस तरह पौलुस ने कहा, मैं भी कहूंगा, I beat my body and make it my slave, मेरे शरीर को अपना गुलाम मैं बनाता हूँ, so that after preaching to all others, I myself will become disqualified. ताकि सब लोगों को प्रचार करने के बाद में मैं खुद अयोग्य गणित हो जाऊं। Now, which means I will have a healthy fear. I will be cautious in about holy living. जिसका यह मतलब है कि जो डर मेरे अंदर है वो एक अच्छा डर होगा, एक ऐसा भय होगा जो मेरे लिए भला होगा। Dread causing God, and then deeds to bless the church doing youth. You know, young people were there and they did deeds that blessed the church. और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सारी कलीसिया पर भय छा गई, और फिर हम देखते हैं कि जवानों ने उठकर उसकी सारी अर्थी बनाई और सारे काम किए। So Ananias dies. तो अनन्यास मर जाता What है। does verse 6 say? छठवें वचन में क्या होता है? Who buried him? किसने उसको गाड़ा? The young people in church. जवानों ने उठकर उसकी अर्थी Pastor उठाई। did not even call them, come. No, the young people volunteered. पास्टर ने बुलाया भी नहीं कि अनन्यास की अर्थी उठाना है या फिर उसको The गाड़ना young है। people of that church were so eager to do good deeds. जवान उस कलीसिया के जो जवान थे वो इतने उत्सुक थे भले कामों को करने के No, लिए। they were volunteers. उन्होंने वो आगे आकर उन्होंने उन सारे कामों को Pastor किया। did not say, boys, bury them. पास्टर ने ये नहीं कहा जवानों इस अर्थी को उठाओ या फिर इस शरीर को गाड़ But दो। they ran with their talents. You know, their talent was now to dig a grave that is deeper to send this body in. और उनके पास जो भी खूबियां थी, उनकी खूबी अब जो उनके पास थी यह थी कि वो एक बहुत बड़े खड्डे को खोदे जितना गहरा हो सके अनन्यास की शरीर को रखने के लिए। It was a messy, you know, it was not an enjoyable job.
ये बहुत ही एक शोभा देने वाली या फिर एक आनंदित एक काम नहीं It था। was not like giving a solo in front of the church. और चर्च के सामने एक अपने एक सोलो देने की एक समय नहीं It थी। was not like leading worship. वर्शिप को या फिर आराधना की अगुवाई करने वाली एक काम नहीं It थी, was to dig a grave. लेकिन एक खड्डे को खोदना या फिर उसके गाड़ने के लिए एक स्थान को तैयार करने का But एक the काम young था। people knew that pastor needed help. लेकिन वो जवान जानते थे कि पास्टर को मदद की जरूरत थी, And they rushed towards the pastor and volunteered. और वो लोग सब भागे उस समय में उस अवसर को देखकर, और उन्होंने वहां पर भाग लिया। Would you do that, young people? यहाँ के जवान लोग क्या Would वो you करते हैं? join your pastor in fulfilling the mission of the church? कलीसिया के लिए जो नियम दिया है, जो काम दिया गया है, उसके लिए पास्टर के साथ अपने हाथों को आप बांटेंगे। Your pastor might want to give a lot of tracts or buy Jesus CDs or evangelistic literature into the hundreds and thousands of tourists that are coming to Goa year after year, or for some special events. He can't do it. He's just got two hands. हो सकता है कि पास्टर की यह योजना हो कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं गोवा में साल में, उनको परमेश्वर के बारे में कई लिटरेचर देना या फिर कोई सीरीज देना या फिर ऐसे कोई चीजों को बांटने के लिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 हाथ है। क्या आप उसके लिए अपने विभाग को दे Will you देंगे? become the hands for your pastor to reach out to more people in this great city? और इस शहर के अनेक लोगों की ओर उस परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए उस पास्टर के अनेक हाथ क्या आप बनेंगे? We move on in the story. Deaf to the Holy Spirit, Sapphira. सफीरा के बारे में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शब्दों को उसने अपने कान को बंद किया। 3 hours later, the wife comes to the church. 3 घंटे के बाद में सफीरा आती है। And verse 7 and 8, Pastor Peter asked the question, okay, is this how much you sold this for? 7वें वचन में पास्टर पीटर सफीरा से पूछते हैं, मुझे बता क्या तुमने वो भूमि इतनी ही में बेची थी? Tell me whether you sold the land for so much. वो कहते हैं कि मुझे बता क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? She had an opportunity here उसके पास एक अवसर था, to say, no, उसके पास ये अवसर था कि वो कह सके नहीं। no, that's not the amount. वो कह सकती थी कि नहीं, ये वो रकम नहीं है। My husband told a lie and I joined him, in fact, in that lie. मेरे पति ने एक झूठ बोला और उस झूठ में मैं भी शामिल हो गई। An opportunity to repent. एक ऐसा अवसर जिसके लिए वो पश्चाताप कर सकती थी। The Holy Spirit was speaking to her, perhaps. हो सकता है कि पवित्र आत्मा भी उससे बात कर रहे थे। Don't tell a lie, don't tell a lie, don't tell a lie. You can outsmart God, you can outsmart God, you can outsmart God. झूठ मत बोलो क्योंकि परमेश्वर के ऊपर आप नहीं हो सकते। But you know, she turned down that volume लेकिन उसकी वॉल्यूम, उसकी आवाज को उसने कम कर दी and she told a lie. और उसने वापस झूठ बोला। He said, that's right. उसने कहा कि हाँ, She too fell down dead. और फिर इतने में वो भी मर गई। You know, when you hear a message जब हम एक समाचार सुनते हैं, एक प्रचार को सुनते हैं, or when you miss an accident, या फिर एक दुर्घटना को हम बहुत ही कम समय में उससे बच निकलते you हैं। know, there are times when you have little idea that could be the last opportunity that God is giving you to come back to Him. आपको ये बात पता नहीं होगा, आपको ये बात बहुत कम पता होगा कि यह परमेश्वर ने दिया हुआ आखिरी मौका है या अवसर है। Don't be deaf to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के उस शब्द को या पवित्र आत्मा के उस आवाज को अपने कान को बंद नहीं Don't करना। grieve the Holy Spirit who is speaking to you. पवित्र आत्मा जो आपसे बात कर रही है उसको दुख नहीं देना। And then finally in the story, और आखिर में इस कहानी में doubtless future predicting Peter. पतरस को हम देखते हैं जो बिना संदेह के उसके भविष्य के बारे में He कहता है। says in Acts 5:9, 9वें पद में हम इसको the पढ़ते young हैं। men who buried their husband are coming back, and they shall carry you out. वो कहता है कि देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले The जाएंगे। Holy Spirit gave him a word of revelation that she was going to die. और पवित्र आत्मा ने एक प्रकाशन पतरस को दी थी वहां की ये भी मर जाएगी। Peter was not God.
पतरस परमेश्वर नहीं था, but the Holy Spirit, who is God, was living inside of Peter. लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर था वो उसके अंदर था, And the Holy Spirit gave him some gifts and abilities. और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर कई ऐसे दान थे, ऐसे कोई तोहफे It थे was और a genuine गुप्त word बातें of थी। knowledge about what was going to happen in the future. और ये सच बात थी जो भी आगे बढ़ने वाला था, जो पतरस को मिला And he था। said, the young men who carried your husband are going to carry you out also. In other words, you're going to die. और उसने ये कहा कि तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे, जिसका मतलब था कि तू भी मरेगी। You know what? We have the word of God, which is more sure than the word of the prophets, in the sense, the written word of God. That is that is what we have for all matters of belief and behavior. The written word of God. You know, the word of God is talking about certain sure things to happen in the future. और परमेश्वर की तरफ से लिखित प्रभु का वचन हमारे पास है, जिसके द्वारा हम इस बात के पक्के हो सकते हैं कि जो भी इसमें लिखा है वो होने वाला है, ना कि किसी के कहने के द्वारा, लेकिन वो लिखित है हमारे सामने और इस बात का हम पक्के हो सकते What हैं। is one thing that is sure to happen? क्या है वो एक चीज जो बिल्कुल सही है और बिल्कुल हो जाएगा? Jesus will return again. यीशु मसीह वापस आएगा, That is sure to happen. We can be doubtless about that. और इसके बारे में हमें कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात के हम पक्के हो सकते हैं। Because my Bible says in 1 Thessalonians 4:16, the Lord Himself will descend from heaven. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन में कहते हैं कि परमेश्वर खुद इस दुनिया पर उतर आएंगे। And then the Bible says in Matthew 24:14, the gospel of the kingdom will be preached in all nations, and then the end will come. और मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 14 वचन में हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार जो है दुनिया भर में प्रचार किया जाएगा, उसके बाद अंत आएगा। So which means everybody has to hear of Jesus. जिसका यह मतलब है कि सबको परमेश्वर के बारे में सुनना जरूरी This है, will happen. और ये जरूर होगा। But you should cooperate with God's plan. लेकिन परमेश्वर की इस योजना के साथ हमें भी संबंधित रहना That's है। why even when we are enjoying a holiday in Goa, when we go for these boat rides, when we see these waves come and kiss the sand, I look at some total strangers and say, you know what? I follow a Jesus. और इसीलिए जब हम हॉलिडे पर छुट्टियों को मनाने के लिए गोवा में आए हैं, या फिर हम लोग बोट राइड में जा रहे थे, कई ऐसे लोग जो वहां पर थे, मैंने उनसे कहा कि आपको पता है मैं कैसे यीशु का पीछा करता हूँ। He can give you calm in the storm. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आंधी के समय में भी आपको शांति दे सकता है। Your life may be a storm, आपका जीवन आंधी की तरह हो but सकता the है, Jesus I follow can give you a calm. लेकिन जिस यीशु का पीछा मैं करता हूँ वो The Jesus परमेश्वर who आपको gives शांति दे us सकता है। calm in life's storm. One sentence gospel. एक ही बात में या फिर एक ही वचन में परमेश्वर की सुसमाचार को सुना सकते हैं। Why? क्यों? The gospel of the kingdom will be preached to all nations, and then the end will come. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का सुसमाचार जो है वो पूरे देश या फिर पूरे जगत में प्रचार होने के बाद वो अंत आएगा। There will be a day of judgment, no doubt about it. The Bible talks about it. न्याय का एक दिन होगा जरूर, इसका कोई शक नहीं है। There is going to be an eternal hell. There's no doubt about it. Jesus talked about it 8 times from his own mouth. परमेश्वर ने खुद अपने ही मुंह से उन अंत के समय के बारे में कहा है। And there's going to be a place where we will be with the Lord forever, eternal heaven. Jesus talked about it again. और यीशु मसीह ने उस बारे में भी कहा है जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे, वो है स्वर्ग। These are doubtless things that will happen in the future. ये ऐसी बातें हैं जिसका कोई संदेह नहीं है और ये जरूर हो जाएंगे। So we must be ready. तो इसके लिए हमें तैयार रहना The है। youth again buried Sapphira. और वो सारे जवान जो थे उन्होंने वापस सफीरा की अर्थी पे उठाकर उसको गाड़ा। You be a dedicated worker of the church. Some people get something like a heart attack or a good deeds attack. They do one good deed and then they disappear. No, the youth buried the first body, and then they were ready to bury the second body also. That means dedicated good works done for the Lord through the local church by the young people. और जवान ऐसे होना चाहिए कि जो काम करते हैं उसको लगातार करना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार कोई भले काम को किया उसके बाद में सो गए या फिर बैठ गए, लेकिन अनन्यास को गाड़ने के बाद वो वापस आए और दूसरी अर्थी उन्होंने उठाई सफीरा की, उसको भी गाड़ा। वैसे हम लोगों को जो काम करते हैं भले कामों में हमें लगे रहना है। Do not be weary in doing good, for in due season we will reap if we do not give up. The Bible says in Galatians 6:9. गलातियों उसके 6 अध्याय उसके 9 वचन में हम यही पढ़ते हैं कि जिस समय पर हम लोगों को भले काम करना है। So what is the main point of Acts chapter 4 and chapter 5?
प्रेरितों के काम उसके 5वें और 4थे और 5वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा है? Luke was actually the writer. लूक उसका लेखक था What was Luke's main point? और उसकी सबसे बड़ी पॉइंट या फिर उसकी बात वहां पर वो बोलना चाहता Not था to वो क्या है? scare you, not to put you, not to make ensure that you go back to a house with a long face. No, that is not his purpose. और उसका यह बात नहीं था कि वो लोगों को बताए कि उसकी सीख वो जो देना चाहता था वो क्या What है। was Luke saying? Luke was saying, you be a Barnabas. लूक यह कहना चाहता था कि आपको बरनबास बनना है। You know, you sell your property, tell the truth. आपने अगर अपनी जगह को बेच दी है तो सच बताएं। You know, do it like Barnabas, not like Ananias and Sapphira. अनन्यास और सफीरा की तरह नहीं लेकिन बरनबास की तरह करना है। Be an encourager for the local church. परमेश्वर के काम के लिए अपने कलीसिया में एक उत्साहित करने वाला एक इंसान Be बने। an encourager to a fellow believer. अपने साथ में बैठने वाले विश्वासी के लिए एक उत्साहित Don't करने be a वाला इंसान, deceiver. एक धोखा देने वाला इंसान ना बने। Be Barnabas the encourager, not Ananias and Sapphira the eliminated. शांति को देने वाला या फिर उत्साहित करने वाले बरनबास की तरह बनो ना कि अनन्यास और सफीरा की तरह। Endure till the end. और अंत तक ढाढ़स बांधे रहना। Run with endurance. और जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं उसको Be- हम लोग को थाम के Be रहना है। Barnabas the encourager. एक ऐसे इंसान बनो जो उत्साहित करता है बरनबास की Ananias तरह। and Sapphira tried to imitate Barnabas, but you know they actually ended up deceiving themselves and trying to deceive the church and trying to deceive the believers, and they were eliminated. Don't be like Ananias and Sapphira. Be Barnabas. बरनबास की तरह अनन्यास और सफीरा भी बनना चाहते थे लेकिन उन्होंने वहां पर अपनी जान को खो दिया। और उसी तरह हम लोगों को अनन्यास और सफीरा की तरह नहीं लेकिन बरनबास की तरह उत्साहित करना है। Would you close your eyes right now? अपनी आंखों को बंद करें, All eyes closed, सारे आंखें बंद रखें, all heads bowed. सारे सर झुक जाएं। You know, I'm just want to revise now. We met the disciple Ananias, एक ऐसे अनन्यास को हमने देखा जो एक शिष्य था, the doting wife Ananias, उसके पत्नी के लिए वो एक सहायक था, and he was a donating Ananias. वो दान करने वाला एक अनन्यास He था, was a deceiving Ananias. वो धोखा देने वाला अनन्यास था। And we have the deity of the Holy Spirit demonstrating Peter. अब पतरस जो खुदा को दिखाने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा And he was- ऐसे पतरस को हम We देखते meet हैं। the dead or destroyed by the Lord Ananias. अनन्यास को हम देखते हैं जो मर चुका था, And we see the dread causing God in the early church. भय लाने वाले एक परमेश्वर के बारे में हम देखते And हैं। we see that the youth deeds to bless the church doing youth. और उन जवानों को हम देखते हैं जो कलीसिया के लिए एक आशीष थे। We see the dead to the Holy Spirit Sapphira, deaf to the Holy Spirit Sapphira. सफीरा के बारे में हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा के वचनों को उसने अपने कानों को बंद किया था। And we have the doubtless future predicting Peter. और न संदेह करने वाले भविष्य के बारे में कहने वाले पतरस को हम देखते And we हैं। have the dedicated youth who don't tire after one good work. They keep working for the Lord. They keep working for the Lord. Dedicated youth, 11th. और उन जवानों को हम देखते हैं जो एक काम को भले काम को कर वो लोग थकित नहीं हो जाते हैं लेकिन लगातार उसको करते रहते And the हैं। final question, और आखिरी प्रश्न ये would you है, be a Barnabas or an Ananias or Sapphira? अनन्यास या सफीरा बनोगे या बरनबास How many बनोगे? of you say, I want to be a Barnabas, an कितने लोग encourager? कहना चाहते हैं कि मैं एक उत्साहित बनना चाहता हूँ, Can you मैं raise your बरनबास hand? बनना Raise your चाहता hand, raise your hand. हूँ। अपने हाथों को उठाएं। You're not raising it for me. आप मेरे लिए अपने हाथों को This नहीं is उठा रहे between हैं। you and God. ये परमेश्वर और आपके God बीच loves है। you. परमेश्वर आपसे प्यार He's करता got a है। grand plan for you. आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। He's got a glorious plan for you. एक महिमा सहित परमेश्वर That का you एक be a योजना है Barnabas. कि आप एक बरनबास बने, That you will be a blessing. एक आशीष बने, That you will be an encouragement. एक उत्साहित करने वाला Don't इंसान allow बने। the devil to deceive you. धोखा देने के लिए शैतान को मौका न देना। Don't let the devil tell you that you can live as you like and get away with it. परमेश्वर के लोगों यह मत अवसर देना शैतान को कि शैतान आपसे कहे कि आप जिस तरह चाहते हैं अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। Now the devil will tell you you're saved by grace, so you can live as you like. शैतान आपसे कह सकता है कि कृपा के द्वारा आप बचे उद्धार पाए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन को जिस तरह चाहते हैं उस तरह The बिताएं। devil quoted the Bible verses in Jesus' time, and he's quoting theology these days. परीक्षा के समय परमेश्वर यीशु से भी शैतान ने वही पद इस्तेमाल किए थे बाइबल And this is what the devil says: you're saved by grace, so you live as you like. और विश्वास के द्वारा या फिर कृपा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और आप जिस तरह चाहते हो अपने जीवन को बिता सकते हो। ये परमेश्वर God is always happy with you. परमेश्वर हमेशा आपसे खुश है। That's what the devil says through some preachers. शैतान कई बार
प्रचारकों के द्वारा यही कहते हैं, Don't believe those lies. लेकिन इन सारी झूठ पे हमें विश्वास नहीं करना Does है। God love you when you sin? क्या परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं जब आप पाप करते हैं? Absolutely. कभी नहीं। Yes, He loves you. He loves you. हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार That's करते why हैं, you are alive. इसलिए आप जिंदा हैं। You are not consumed because of the grace of God. The book of Lamentations says. विलाप गीत की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की कृपा के द्वारा हमारे जीवन बर्बाद नहीं हुआ है। So you must, because you are alive, you come back to Him in repentance right this very second. और इसलिए कि आप जिंदा हैं, इस समय पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास वापस लौट आएं। So that's why you are alive. Because if you are, otherwise you will be dead, and after you died, you have no chance of salvation, and you are going to eternal hell. क्योंकि इसलिए आप जिंदा हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आप मरे होते और आपके लिए और कोई अवसर न बचती। So if you are alive after you have gone away from God, run back to Him in repentance. और अगर आप अभी जिंदा हैं और आपने परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया है तो भागकर आए और परमेश्वर से पश्चाताप कर एक नए जीवन को प्राप्त करें। Because we don't know when what happened to Ananias and Sapphira can happen to us. क्योंकि हम नहीं जानते कि जो अनन्यास और सफीरा के साथ हुआ था वो हमारे साथ कब घट सकता It can है। happen. वो हो सकता है। It can happen. It happened after Jesus came down, lived a sinless life, died on the cross. Ascended, sat at the right hand of the Father, started praying for us. If that happened to Ananias and Sapphira at this point in church history, it can happen to us as well because we are also like them. यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद, अपने सेवकाई को करने के बाद, क्रूस पर अपनी जान को देने के बाद, वापस स्वर्ग में जाने के बाद, हमारे लिए विनती करने के बाद में अनन्यास और सफीरा के जीवन में अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता Only है। God knows how many opportunities He wants to give you. लेकिन सिर्फ परमेश्वर जानता है कि कितने अवसर वो या फिर कितने मौके वो हमारे लिए उसने तैयार कर रखा This है। particular opportunity could be the final opportunity. हो सकता है कि यह मौका हमारे लिए आखिरी मौका हो। So that's why make good use of it. तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका उपयोग अच्छी तरह से करना। Remain in Christ. परमेश्वर में बना रहे, Abide in Christ. मसीह में बना रहे। There is no condemnation to those who are in Christ Jesus, the Bible says. जो मसीह यीशु में है, जो मसीह में बने रहते हैं, उनके लिए दंड नहीं है। The Bible doesn't say there is no condemnation to those who once were in Christ Jesus. एक समय पर या फिर एक समय पर जो मसीह में थे उनके लिए दंड नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। Those who are in Christ Jesus. He's talking about a living, daily, deep relationship. और एक ऐसा समय के बारे में परमेश्वर कहता है जो हर दिन अपने जीवन को मसीह के साथ बिताते हैं। If you're fallen into sin, immediately repent and come back to Him. अगर आप पाप में गिरे हुए हैं तो उसी क्षण में अपने परमेश्वर से पछताएं और वापस आ जाएं। Walk in victory. जय में हर दिन परमेश्वर Don't के साथ allow the grace of God and don't use it like a credit card for sin. That is the teaching of the book of Jude. परमेश्वर के उस कृपा को हमें ऐसे ही अपने लिए नहीं लेना है कि हम पाप में ही रहें। No, to get up and come back to Him. That's why we have the grace of God. परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर इसलिए है ताकि हम वापस परमेश्वर के पास आएं And abiding in Him in every day. और हर दिन परमेश्वर में बने रहना। You say, Lord, I want to be like that kind of life. और ऐसी एक जिंदगी मुझे चाहिए, I want that kind of life, Lord. ऐसी एक जिंदगी प्रभु मुझे Give me चाहिए। grace, Lord. परमेश्वर मुझे कृपा I want to दे। be a serious Christian परमेश्वर एक ऐसा मसीह में बनना चाहता who हूँ is having victory over sin. पाप के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, Who abides in Christ. हर दिन मसीह में जो बना रहता है, Who walks with Jesus every जो हर day. दिन यीशु के साथ चलता है, Pray that prayer right now. उस प्रार्थना को अभी प्रार्थना Just कीजिए। get right with God. परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को Just सही say that बनाएं। the blood of Jesus will cleanse you from every sin. परमेश्वर का वो लहू आपके सारे पापों से आपको शुद्ध करेगा। 1 John 1:7-9 says, the blood of Jesus, if we confess with our mouth, if we confess our sins to the Lord, the blood of Jesus will cleanse us from every sin. पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7 से 9 वचन तक अगर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अगर परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हैं, हमारे सारे पापों से शुद्ध करने के लिए प्रभु का लहू है। Gracious Heavenly Father, हमारे अच्छे भले परमेश्वर, we thank you for this Sunday morning. इस इतवार की सुबह के लिए हम आपका Thank you for धन्यवाद speaking करते to हैं। us from Acts chapter 5. प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय से हमसे बात करने के लिए Lord, we धन्यवाद। don't want to be like Ananias and Sapphira. अनन्यास और सफीरा की तरह हम नहीं बनना We want to चाहते। be like Barnabas. बरनबास की तरह हमारे जीवन We को want to be an encouragement for the local church. परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, प्रभु जी हमारे कलीसिया के लिए एक उत्साह करने वाले इंसान हम We want to be बनना चाहते हैं। encouragers in the kingdom of God. परमेश्वर आपके राज्य के लिए हम उत्साहित व्यक्ति बनना चाहते We हैं। want to live holy
एक पवित्र जीवन enabled by a Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा घोषित किया हुआ एक जीवन को हम जीना चाहते Thank you हैं। for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। In Jesus Christ's name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको